Good morning, everyone. In the last class, I did introduce and in fact recap the basic idea of linear inequations and how to solve a set of given linear inequations graphically. Now, based on the basic idea, whatever you have learned in class 11, now I am going to start with the basic idea of the linear programming problems, in short, referred to as LPP. There are two subtopics which are deleted for this session only, right? But in the sample paper, even released by CBSE, portion of that is already covered in the another way. So I will be taking the questions now on from the sample papers, also the case studies at the same time, so that you will be having the better idea how to attempt those type of questions. So what exactly is a linear programming? It's a method used in decision making in business for obtaining the maximum or minimum value of a linear expression subject to satisfying certain given linear inequations. Consider a situation: there is a factory, right, that's manufacturing certain bats and balls. So of course lot many people, men, women, they are employed. There are limited infrastructure available in the factory. Number of working hours is limited. No one can work for 24 hours. Even machines cannot work throughout for 24 hours. So there are the limitations of the raw material which is available. There is a limitation on that businessman, that how much he can invest in a specific month or maybe in a year. So there are lot many constraints whenever there is a business is there. But at the end of the day, there are two things. First, what businessman would prefer to use the minimum cost, right? So minimum number of men, minimum number of say item resources is to be used, but at the end of the day expectations would be maximization of the profit. So when we have the terms like this, maximize, minimize, we have already seen the concept of AOD, applications of derivatives. But please do not confuse and mix both the things. When it is about LPP, then language will definitely make it clear that we are referring to the problem related to LPP, right? And when we have to maximize or minimize, we are going to use the graphical method only in our syllabus. Though there are other methods also, likewise we have a simplex method, and there are one or two more methods. They are studied at university level, and this linear programming problem is a part of what we call as a optimization problems. After 12th class, people go for say maths honors, BSc maths honors. After that they go for MSc. So MSc is in pure mathematics, applied mathematics, and it is also done in operational research, OR. So linear programming actually falls under the category of operational research. So that is a very, very huge and a vast topic. But as far as grade 12th is concerned, we are talking about a very limited form of it. So linear expressions is known as the objective function. Look carefully, read the definition once again. LPP is a method used in decision making in business for obtaining the maximum or minimum value of linear expression. So agar in some case it is say about the profit, so definitely no one will go for the minimum profit. Everyone of course will go for the maximization of the profit, right? So maximum profit jo karna hai, that will be my profit function in a linear
expression of two variables x and y only. Again, up to class 12th, we are having a limited situation of using only x and y. At university level, we will go beyond that. तो जो higher level में maths लेंगे, they will study कि 3 equations होंगी in 3 variable, 4 equations in 4 variable, and even one can think of, imagine, say 10 equations in 10 variables. So solving them using the manual or algebraic approach is practically not possible. For that, definitely in that case, we use the software programs. तो LPP के लिए देयर आर लॉट मेनी अप्रोचेस, सॉफ्टवेयर्स के थ्रू ज्यादा और इसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, बट अभी हम मैनुअल बात कर रहे हैं. तो लीनियर एक्सप्रेशन जो होगा, जो मुझे मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है, दैट विल बी रेफर टू एज माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एंड the conditions will be also attached in the form of linear inequations. Conditions का मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट के लिए मेरे पास नंबर ऑफ मेन तो लिमिटेड है, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स लिमिटेड है, नंबर ऑफ रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो दे आर एक्चुअली माय कंस्ट्रेंट्स. So they will be referred to as my linear constraints. Check out this. Already explained, quick check. Further, check out the proper definition of the objective function. Generally, objective function will be represented by capital Z. So Z is equal to ax plus by, something like that. Optimal value of a objective function. टर्म्स को थोड़ा सा ध्यान से समझिए. सिंपली द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होगी किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, वो कहलाती है इसकी ऑप्टिमल वैल्यू. और फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स satisfying all the constraints is known as a feasible solution. तो हम ग्राफिकल विजुअलाइजेशन पे जाने वाले हैं. तो देयर विल बी इन्फिनाइटली मैनी पॉइंट्स इन से सम स्पेसिफिक जो लास्ट क्वेश्चन कल हमने क्लास में किया था, अगर आप रिकॉल कर पाए, से अ ट्रायंगुलर रीजन इज फॉर्म्ड, सो इट कंटेन्स इन्फिनाइटली मैनी सेट ऑफ पॉइंट्स. तो वो सारे पॉइंट्स जो सेटिस्फाई करेंगे गिवन कंडीशन को, दे कॉन्स्टिट्यूट द फिजिबल सॉल्यूशन. और ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? अ फिजिबल सॉल्यूशन इसी का सबसेट है विच लीड्स टू द ऑप्टिमल वैल्यू. ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब जो मैक्सिमा या मिनिमा दे दे. तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको वो पर्टिकुलर पॉइंट्स की बात हो रही है जहां आई एम गेटिंग दी मैक्सिमा और मिनिमा, and the whole process is actually referred to as the optimization techniques, a subtopic, a subpart of operational research. Now, LPP क्या हो गया? A journal LPP consists of maximizing or minimizing the objective function subject to certain given constraints. So the idea will be very much clear once I will start with one or two examples. Formulation of LPP as per CBSE guidelines, it is not actually now required, but at the same time I will very soon show you one question wherein it is indeed asked in the sample paper.
So basic idea I am only going to talk about, right? Identify the unknowns, उन्हें हम x and y कहेंगे. फिर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन फ्रेम करेंगे इन टर्म्स ऑफ x एंड y. फिर जो कंस्ट्रेंट दिए होंगे उन इंग्लिश लैंग्वेज को हम कॉम्प्रिहेंशन को समझने के बाद मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे. सो इंग्लिश टू मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो हमारा बनाने वाला है ऑल लीनियर इनइक्वेशंस. वंस दोज आर फॉर्म्ड, फिर हम उसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, कॉमन एरिया को शेड करेंगे. कॉर्नर पॉइंट्स मेथड बोला जाता है. उन पॉइंट्स पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यूज को निकालेंगे और वहीं पे मुझे मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा. मैक्सिमा एंड मिनिमा may not also exist, but such type of questions are not in our syllabus. As already mentioned, we have the graphical and the algebraic solutions as well, but we will be only taking the graphical solution. Please check out this theorem 1 followed by theorem 2. सबसे पहले अपने आप समझिए theorem 1 को. Yes, before I move on, everyone, please mark your attendance. So the basic idea is theorem 1 में क्या कह रहे हैं, let R be the feasible region. जैसे लास्ट क्वेश्चन में याद करिए जो मैंने बताया, ट्रायंगुलर रीजन बन गया, शेडेड रीजन. पहले थोड़ा सा आइडिया दिखा देता हूँ. जैसे ये शेडेड रीजन है, सो दिस टाइप ऑफ रीजन विल बी रेफर टू एज द फिजिबल रीजन. अब कह रहे हैं किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए z इज इक्वल टू ax प्लस by ऑब्जेक्टिव फंक्शन है. When z has the optimal value, maxima या minima, where the variable x and y are subject to constraints described in the linear inequalities, the optimal value must occur at the corner point or the vertex of the feasible region. तो feasible region तो ये पूरा shaded है, sky blue color. बट इसमें से ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है इस क्वेश्चन में वो सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स, मतलब ओ, ए, बी एंड सी, सिर्फ इन 4 पॉइंट्स के ऊपर एग्जिस्ट कर सकता है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस थियोरम. प्रूफ ऑफ दिस थियोरम इज नॉट इन आवर करिकुलम. वो यूनिवर्सिटी लेवल पर है कि क्यों ऐसा होता है. अभी के लिए हमें सिर्फ एज अ रूल ये याद करना है. क्विकली चेक आउट थ्योरम 2. गिव मी अ सेकेंड.
यस। सो नेक्स्ट थ्योरम 2 में क्या कह रहे हैं? लेट आर बी द फिजिबल रीजन फॉर द एलपीपी एंड जेड ए एक्स प्लस बी वाई बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन if R is bounded, then the objective function has both maximum and minimum value and which occur at again at the corner point only. तो बाउंडेड रीजन के केस में तो मैक्सिमा मिनिमा हमेशा एग्जिस्ट करेगा। लाइकवाइज अगेन इन दिस डायग्राम, तो दिस इज अ बाउंडेड रीजन, क्लोज है ये, राइट। अनबाउंडेड के अंदर मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, बट अनबाउंडेड वाला सिलेबस में नहीं है। तो इसीलिए आई एम टेकिंग एंड कंसिडरिंग ओनली दिस पार्ट। चेक दिस रिमार्क एट लीस्ट। ओके, कंसिडर दिस क्वेश्चन। ये अभी आपका प्रीवियस क्लास बेस्ड है, 11th में जो आपने करा हुआ है। सिंपल मैंने क्वेश्चन पिक किया है, ऑलरेडी आपको ये सब आना चाहिए कि ये दो ये इनइक्वालिटीज हैं। पहले इक्वालिटी कंसीडर कर लेते हैं, 5x प्लस वाई इक्वल टू 100, उसे प्लॉट करा। देन x प्लस वाई इक्वल टू 60, उसे प्लॉट करा। एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये अगर मैं बताऊं तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया है। एंड थ्रू आउट हम यही कंडीशन की इन जनरल बात करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि x अगर मान लो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मेन, y रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ वुमेन, तो दे आर ऑलवेज पॉजिटिव इन नंबर, नेचुरल नंबर ही एक तरह से होगा, राइट। तो इसीलिए दे हैज टू बी ग्रेटर देन 0 इन जनरल। तो द आंसर विल ऑलवेज लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। For a sake of simplicity, I already have taken this graph. I believe you all can understand and graph it. Check this out. So first inequality 5x plus 5y वाली जो है वो ग्राफ कर दिया। शेडिंग आई एम श्योर एवरीवन नोज कि कैसे चेक करते हैं, लास्ट क्लास में मैंने रिकॉल भी करवा दिया था। वो आपने 0 0 को पॉइंट पुट करके चेक करा, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है तो लेफ्ट साइड में शेडिंग आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड इनइक्वालिटी को लिया, पहले मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 60 को ग्राफ कर दिया, ये लाइन आ गई, और इसका शेडिंग भी 0 0 टुवर्ड्स द ओरिजिन है। और क्योंकि x एंड y आर पॉजिटिव, माय आंसर इज बाउंड टू बी ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एरिया। तो कॉमन रीजन सारों से अगर आप चेक करें वो ये आ जाएगा, राइट। सो इस हिसाब से जो क्वेश्चन पूछा था वो तो ये हो गया है। बट इसमें एक पार्ट और था, वो मैं यहाँ मेंशन करना भूल गया हूँ कि आपके पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी गिवन था, राइट। तो दैट ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ऊपर हम ये वैल्यूज को निकालते हैं और फिर इनमें वैल्यूज में से डिफाइन करते हैं विच इज द मैक्सिमम वैल्यू वी आइडेंटिफाई। तो z की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, राइट। तो इसमें वो मिसिंग है, डू नॉट वरी अबाउट दैट। चेक आउट दिस क्वेश्चन एंड नाउ आई एम वेटिंग। एक बार अपने आप सोचिए क्या करेंगे, हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन।
Yes. So solve the following linear programming problem graphically. मैक्सिमाइज करना है इसे सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स. जिसे भी मैक्सिमाइज करना है वो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको हम बाद में कंसीडर करेंगे. सबसे पहले लुक एट द गिवन कंस्ट्रेंट्स. दीज आर माय लीनियर इनइक्वालिटीज. तो फॉर अ टाइम बीइंग आप सिर्फ फोकस करिए कि अगर मुझे इसे और इसे प्लॉट करना है ऑन द ग्राफ, तो x प्लस वाई इक्वल टू 50, और उसके बाद ओरिजिन को सेटिस्फाई कर लिया, टुवर्ड्स द ओरिजिन आएगा. अगेन नेक्स्ट आप इसको प्लॉट कर सकते हैं. सो बेसिकली व्हाट विल हैपन, अगर मैं बात करूं यहां पहले वाला जो ये था x प्लस वाई आप कंसिडर करेंगे इक्वल टू 50 के साथ. एंड यूजुअल मेथड, when x is 0 y is 50, when y is 0 x is 50. Then I am going to consider this second inequality. But equality लेते हैं हम जब पॉइंट्स चाहिए और ग्राफ करना है. यूजुअल मेथड, when x is 0 y is 90, when y is 0 x is 30. बट याद रखो हर बार ये इतने इजी पॉइंट नहीं मिलेंगे कि x को 0 रखा तो इंटीजर वैल्यू और y को 0 रखा तो इंटीजर. हो सकता है आप x को 0 रखते और y आपका आ जाता 20/3. तो 20/3 को ग्राफ पे प्लॉट करना आसान नहीं है, अप्रोक्सीमेट ही आप कर सकते हैं. इन दैट केस आई वुड रिकमेंड ट्राई टू चूज सम डिफरेंट इंटीग्रल वैल्यू फॉर x जिसके ऊपर y भी इंटीजर आ जाए, एंड इट इज ऑलवेज पॉसिबल. तो वो क्वेश्चंस आएंगे तब हम और बेटर वे में देख लेंगे. सो आई बिलीव एंड एज्यूम दैट आपने ये वाली टेबल और ये वाली टेबल प्लॉट करा, गैप को डिसाइड करा. जनरली देखकर आइडिया लग जाएगा, 10-10 का गैप ले लिया. सो फर्स्ट लाइन ये ग्राफ करा है, सेकेंड लाइन ये जा रही है, एंड ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही होंगी. जनरली सिंपल इंटीजर पॉइंट आने वाला है. बट हाउ आई कैन बी श्योर अबाउट दिस? इफ आई एम मेकिंग इट ऑन अ ग्राफ पेपर तब तो क्लियर है कि चलो बहुत प्रॉपर नीट डायग्राम बनाऊंगा, एंड आई कैन ऑलवेज रीड इट ऑन द ग्राफ कि the coordinates of their point of intersection they are 20, 30. But can any one of you suggest me some another alternative approach? Anyone? How can I be double sure about this कि ये point 20, 30 ही है? Not second -1 सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, एलिमिनेट. राइट, परफेक्ट, यस. सो आप इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए विद इक्वालिटी. जैसे ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है. यूज एनी मेथड ऑफ क्लास 10th, सॉल्व दिस टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली. उससे मुझे इनका x एंड y मींस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा. तब मैं श्योर भी हो जाऊंगा कि ये पॉइंट सही आया है. Again, this is non-negative constraints. X greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0, referred to as non-negative constraints. तो इसीलिए मेरा आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आने वाला है. That was sure in the beginning itself. इसीलिए ग्राफ पेपर, अगर मान लो मेरा ये पूरा ग्राफ पेपर इतना था, हाफ पोर्शन, तो I give the maximum space to the first quadrant only. I assume ये दोनों लाइंस ड्रॉ हो गई, कॉमन शेडेड रीजन आपने बना दिया लाइक दिस. बट अब आगे फर्दर क्वेश्चन स्टार्ट होगा. ये चीज जो है मान के चलो 80% आपने 11th में ही किया हुआ है. अब रिमेनिंग जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज है वो क्या है? आपको मैक्सिमाइज करना था z इक्वल टू 4x प्लस वाई.
लुक एट दी कॉर्नर पॉइंट्स एज ऑलरेडी मेंशन्ड, ये आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है और कॉर्नर पॉइंट पे ही मेरा फिजिबल सॉल्यूशन आने वाला है। तो कॉर्नर पॉइंट का मतलब 0 0, 30, 0, 20, 30 एंड 0, 50। ये क्वाड्रिलेटरल बना था, तो इसके 4 कॉर्नर पॉइंट ये लिख दिए और इन पॉइंट्स के ऊपर गेट द वैल्यू ऑफ z। z है 4x + y, क्लियरली ये तो 0 ही आना था। इसके बाद जरा देख लो 30, 0 एंड सभी के ऊपर निकाल के, आउट ऑफ दिस अब ये सब मैंने कॉरस्पॉन्डिंग this type of the answers are always possible. तो जनरली प्रैक्टिकल स्पीकिंग इट वॉन्ट हैपन, प्रैक्टिकली इट वॉन्ट हैपन कि भाई अगर मैंने x कहा था नंबर ऑफ मेन और y कहा था नंबर ऑफ वुमेन, x आ गया 30 और y आ गया 0, तो दिस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस के 30 मेन्स आर टू बी एम्प्लॉयड एंड 0 वुमेन आर टू बी एम्प्लॉयड, सो दैट इज एब्सोल्युटली एब्सर्ड सॉल्यूशन। तो ऐसी सिचुएशन एक्चुअल में रियल लाइफ में नहीं बनेगी, मे बी मैथमेटिकली, क्योंकि इन्होंने x और y को डिफाइन नहीं किया है कि वो नंबर ऑफ मेन हैं, वुमेन हैं या क्या है, इसीलिए दैट इज ओके मैथमेटिकली। सो आई होप द बेसिक आइडिया इज क्लियर। प्लीज चेक आउट वन मोर क्वेश्चन। आई विल शो यू द सॉल्यूशन आफ्टर नेक्स्ट 3 minutes। पहले अपने आप फोकस करिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। Solve the following LPP graphically. Minimize subject to these constraints. तो सबसे पहले मुझे constraints पे फोकस करना है। Draw these two lines. Give the maximum space to the first quadrant as we have the non-negative constraints given to me. प्लीज डू इट। रफ स्केच ही बनाइए, ग्राफ, थोड़ा बेसिक आइडिया अबाउट द टेबल। Check this out. Please do it in your homework. Just एक आइडिया देने के लिए क्विक मैंने सॉल्यूशन भी सामने रखा हुआ है। सो व्हेन यू ग्राफ इट, अब ये ग्राफ बनाने वाला पोर्शन तो 11th क्लास का है। शेडिड रीजन को सोचना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गलती क्या हो सकती थी, हम नीचे वाले इसको कर लेते या इस ट्राइंगल को कर लेते। सो दैट अगेन बेस्ड ऑन द इनइक्वालिटी, ग्रेटर देन है या लेस देन है, अकॉर्डिंगली शेडिंग ये आ गया। तो बी श्योर अबाउट व्हाट यू डिड इन क्लास 11th, शेडिंग करना। और शेडिंग जब हो चुका है, आई हैव दीज 3 कॉर्नर पॉइंट्स। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा क्या है, 200x + 500y।
तो बस x की जगह 0 रख दो फर्स्ट पॉइंट के लिए और y की जगह 5। क्लियरली ये वैल्यू आ रही है 2500। Similarly, you can check out for the other point and this point. तो 4,3 वो आप वैसे भी इंश्योर कर लेना एल्जेब्राइकली इन दोनों इक्वेशंस को जो कॉरस्पॉन्डिंग होंगी उन्हें सॉल्व कर लेना सो दैट आई विल बी श्योर कि हाँ भाई इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4,3 आ रहा है। कई बार ग्राफ के ऊपर होते हैं आपको लगे भाई 4.1 एंड 2.9 है समथिंग लाइक दैट, बट एग्जैक्ट ये 4,3 आया है वो आप इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं। आउट ऑफ दिस अब हमने मिनिमाइज करना था क्वेश्चन, सो मिनिमाइजेशन इज डन एट 4,3। तो x is 4, y is 3, your required answer. So please be sure this fundamental idea is clear. 80% 11th में करके आ रहे हैं चीजों को ग्राफ बनाना। हमने सिर्फ एक ये टेबल को थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज इंट्रोड्यूस किया है, कुछ थोड़ा सा अलग भी आएगा बट दैट विल टेक लेटर ऑन फॉर योर होमवर्क। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज दोनों पूछ लिए हैं, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स। So please mark this question for your homework. Any doubt to anyone? चले please mark your attendance once again. Then you can leave the class. We'll continue in the next class now. Kritika, Bhumika, Ayush,